ملک کی معیشت کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ڈالر نے روپے کو رونڈ ڈالا ہے۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی اونچی اڑان تھم نہیں سکی۔ ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 8 روپے 80 پیسے مہنگا ہو گیا اور انٹر بینک میں اب ایک ڈالر کی قیمت 224 روپے ہو گئی ہے۔ اوپن مارکیٹ کی اگر بات کی جائے تو یہاں ڈالر 8 روپے مہنگا ہو کر یہاں بھی اس کی قیمت 224 روپے ہو گئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی منفی رجحان دیکھا جا رہا ہے اور پی ایس ایکس 100 انڈیکس میں 978 پوائنٹس کی کمی آج دیکھی گئی۔ پی ایس ایکس 100 انڈیکس 40,989 کی سطح پر آ گیا ہے۔ جو ہم ساری کی ساری معاشی صورتحال ڈسکس کر رہے ہیں، آج جو ڈالر کی قیمت میں بہت سارا اضافہ ہوا ہے، 100 انڈیکس میں جو مندی دیکھی گئی ہے 40,389 کی سطح پر جی بالکل۔ تو اس ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے معاشی ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں معاشی تجزیہ کار خاقان نجیب صاحب اور خرم شہزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو عدم استحکام ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا آگے حل کیا ہو سکتا ہے۔ خاقان نجیب صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے آپ کہیے گا، یہ جو آج خاص طور پہ انٹر بینک میں دیکھا جا رہا ہے، اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک دم سے ڈالر 224 روپے پہ پہنچ گیا ہے، بڑی تشویشناک۔ ہیپی ٹو بی آن جیو۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو امیجیٹ ہو رہا ہے وہ تو ایک آبویسلی جو انسرٹنٹی سی ملک میں کریٹ ہوئی ہے، جو سنڈے کو الیکشن رزلٹ آیا، بٹ اصل میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو وجہ تو اس کی بڑی کلیئر ہے۔ FY23 میں آنے سے پہلے جب آپ نے پرانا مالیاتی سال کلوز کیا تو آپ کا تجارتی خسارہ جو تھا وہ 48 ارب ڈالر پہ تھا۔ دیکھیں، آپ ایک مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ میکنزم میں ہیں، جس کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ جو ڈالرز کا انفلو یعنی کہ ڈالرز کی سپلائی اور ڈالرز کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈٹرمن کر رہی ہے اس کے ریٹ کی موومنٹ۔ سو اس میں جو ابھی آپ کو دکھائی دیا ہے کہ پچھلے چند ماہ میں بھی یہ ڈاؤن ورڈ موومنٹ ہوئی ہے کہ روپی ویکن ہوا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ سنگل بگیسٹ ڈٹرمنٹ ہے اس وقت آپ کے ایکسچینج ریٹ کا۔ اب اس کو آپ انسرٹنٹی سے جب کپل کرتے ہیں جو ملک میں اس وقت ایگزسٹنگ ہے، تو جو آپ کے جو فار ایگزامپل امپورٹرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ کوشش کرتے ہیں کہ آج ہی ڈالر کو بک کیا جائے، بٹ فارورڈ بکنگ بھی آج ہی شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ڈالر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے مارکیٹ میں، اور یہی آپ کو دیکھنے میں ملا۔ سو آبویسلی امپورٹس کی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈ بڑی ہوئی تھی، اور جو اسی طرح ایکسپورٹر ہے وہ اپنی ریسیٹس کو ہولڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سو دس از سم تھنگ دیٹ از گوئنگ آن۔ بٹ اس کی دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنا جلدی IMF کے پاس جائیں گے اور آپ کے جو ریزروز کی پوزیشن ہے وہ مارچ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ 16.2 ارب ڈالر پہ تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزروز میں، اور جو لاسٹ فگر آپ کو 7 جولائی کا ہمیں دکھائی دیا وہ 9.7 بلین ڈالرز کا ہے۔ تو جو آپ کی ریزروز کی پوزیشن ہے وہ چونکہ ویکن ہوئی ہے تو آبویسلی یہ بھی مارکیٹ سینٹیمنٹ کو ہرٹ کر رہی ہے۔ آپ جتنی جلدی فنڈ کے پروگرام میں واپس جائیں گے، جی بالکل، آپ اسی بات کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ خاقان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ شاہد حبیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، معاشی تجزیہ کار ہیں، اور خرم شہزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ خرم صاحب، آپ یہ کہیے گا کہ یہ تو ساری وجوہات امپورٹ اور ایکسپورٹ کی انہوں نے بتا دی، لیکن ایک جو انسرٹنٹی ہے، یعنی معاشی انسرٹنٹی جڑی ہے سیاسی انسٹیبلٹی سے، اور وہی غیر یقینی کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ بھی ڈاؤن ہو رہی ہے اور ڈالر بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ دیکھیں، سب سے بڑی یہ چیز ہے، آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، انسرٹنٹی جو ہے وہ کل کرتی ہے ہر چیز کو۔ فائنینشیل مارکیٹس کو بھی جو ہے انسرٹنٹی اچھال کا شکار کرتی ہے، یہی انسرٹنٹی جو ہے وہ ایف ایکس مارکیٹ کو جو ہے امپیکٹ کرتی ہے۔ اور دیکھیں، اس میں دو بڑے ریزنز ہیں، ایک گلوبل ہے اور ایک لوکل ہے۔ گلوبلی آپ کو پتا ہے ٹائٹننگ ہو رہی ہے، ٹائٹننگ سے مراد یہ ہے کہ شرح سود میں اضافہ ہو رہا ہے ڈالر پہ، کیونکہ ویسٹ میں خاص کر ڈیولپڈ مارکیٹس میں جو ہے انفلیشن جو ہے وہ اپنے 30 40 سال 50 سال کے ہائی پر ہے، جو کہ 8-9% کے اراؤنڈ آ رہی ہے۔ اس انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے، کیونکہ وہاں کا بورنگ سسٹم بہت زیادہ اسٹرکچرڈ ہوتا ہے، ہر چیز جو انٹرسٹ سے ڈریون ہوتی ہے، ہر چیز جو ہے بینک سے ڈریون ہوتی ہے، تو انٹرسٹ ریٹس وہاں بڑا کام کرتے ہیں انفلیشن کو نیچے کرنے کے لیے۔ تو انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے فیڈرل ریزرو جو US کا سینٹرل بینک ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہا ہے۔ جو لاسٹ اس نے انکریز دیا ہے مالٹی پالیسی میں وہ 28 سال کا ہائی ہے،
तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर बहुत रैपिडली स्ट्रांग भी होगा। अच्छा, एक यहीं पे थोड़ा सा रोके, मजीद जानने के लिए थोड़ा सा यहाँ रोके। जो डेवलपिंग आप कह रहे हैं ग्लोबली ये ज़ाहिर इंटरेस्ट रेट से कंट्रोल किया जा रहा है इन्फ्लेशन को, लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे पाकिस्तान है, तो हमने देखा कि यही फॉर्मूला अपना रहे हैं, तो क्या हमारे लिए भी कारआमद होगी ये चीज़? जी बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि हम देखें, वो दूसरा फैक्टर यही था कि हम लोकली भी उस हिसाब से चल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक एडेड इशू हमारे यहाँ क्या है, एक एडेड इशू हमारे यहाँ ये है कि जब पूरी दुनिया में अल्लाह ना करे आग लगी हुई होती है तो हम अपने घर को भी जलाना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ भी देखें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कितनी ज्यादा रही है पिछले 3-4 महीने में, कितनी ज्यादा जो है पॉलिटिकली चीजें जो है वो चेंज हुई हैं। अभी कल जो इलेक्शन हुआ है उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं उसने फिर से जो है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को चेंज कर दिया है या उसको और ज्यादा कम कर दिया है, क्योंकि अब ये नहीं पता कि ये गवर्नमेंट भी रुकेगी या नहीं रुकेगी, पीएम या फाइनेंस मिनिस्टर रुकेगा जिसने आईएमएफ के साथ डील किया है। आईएमएफ ने जो कहा है कि वो इंटरिम गवर्नमेंट के साथ आने के लिए तैयार है बात करने के लिए, लेकिन स्टिल हम अभी आईएमएफ ऑनबोर्डेड नहीं है, उसके अभी $1.2 बिलियन नहीं है। इसकी वजह से आपके यहाँ जो लोकल मार्केट है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, लोकल फाइनेंशियल मार्केट पे, लोकल करेंसी मार्केट पे। और अभी देखें आज फिच ने भी डाउनग्रेड किया है आपके आउटलुक को, तो उसका एक एडेड इम्पैक्ट होता है। तो ये सारे मिल के जो है वो प्रेशराइज करते हैं आपके करेंसी मार्केट को और फाइनेंशियल मार्केट्स को। अच्छा शाहिद साहब, आप ये कहिएगा कि क्योंकि हमें ये पता है कि ये कहा जा रहा है कि अगस्त तक शायद आईएमएफ से एक्सपेक्टेड है कि वो लोग दौरा करें और उसके बाद जो ट्रांच हमें 2 इकट्ठी रिलीज़ होनी है वो आए पैसे, अगर उससे पहले क्या मुमकिन हो सकता है कि वो आए और हमें फ़ौरन हो जाए, या फिर अभी उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा? और फिर क्या ये सूरत हाल अगस्त तक जारी रहेगी या उससे पहले कोई मैकेनिज्म हो सकता है इसको कंट्रोल करने का? मेरे दोस्तों ने बहुत सारे रीजंस बता दिए हैं। मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये थी कि आज जो है ऑयल की पेमेंट करनी थी, कोई 150 से 200 मिलियन डॉलर की डिमांड थी, और जिसमें स्टेट बैंक ने मेरे ख्याल से इतना सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से और इनको इंटर बैंक से डॉलर को अक्यूमुलेट करना था, तो जिसकी वजह से आज बहुत ज्यादा जो है रुपी डीवैल्यू हुआ, क्योंकि डॉलर की डिमांड थोड़ी थी। तो 150 से 200 मिलियन डॉलर की डिमांड थी। और जाहिर है जो बाकी सारे रीजन मेरे दोस्तों ने कहे हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और आईएमएफ, और जो आपका सवाल है कि अगस्त तक, जाहिर है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग तो अगस्त में होगी। अब उस वक्त तक जो है हमें कुछ और कंडीशंस जो हैं, जैसे कैबिनेट से हमें इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ जो है वो बढ़ाना है, क्योंकि ईसीसी ने तो अप्रूव कर दिया है, लेकिन फेडरल कैबिनेट भी अप्रूव करना है और वो भी एक कंडीशन है। और चूंकि अब बहुत सारी अनसर्टेनिटी ये है कि क्या इलेक्शन कॉल होता है या नहीं होता, या ये रहते हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो तो साहब डिस्कस ही कर रहे हैं। शाहिद साहब एक चीज़ और बताइएगा, रिजर्व से मुतल्लिक हमारे पास इस वक्त रियलिस्टिकली क्या तखमीना लगाया जा रहा है, कितने रिजर्व्स हैं, और हमारा जो मंथली बिल बनता है क्या वो उससे सस्टेन कर सकते हैं अगस्त तक या उससे थोड़ा सा आगे? टू प्रोवाइड दैट। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए हमारे अभी 9.7 बिलियन डॉलर के रिजर्व हैं और अभी हमारा इंपोर्ट कवर जो है वो सिर्फ 1.5 महीने का रह गया है, जो कि जो पहले 2.5 महीने का हुआ करता था अब 1.5 महीने का रह गया है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो महीने का कोई 1.5 बिलियन डॉलर का आ सकता है जुलाई के महीने का, और अगस्त ये जुलाई के महीने का आ सकता है। तो जाहिर है हमें ये संभालना होगा। और आपकी बात बिल्कुल है कि अगस्त तक, देखिए अगस्त तक करने में हमें थोड़ा सा इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देना है। अभी कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर को आना चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अभी फ्रेंडली कंट्रीज से हमें, चूंकि हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो चुका है, तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का मतलब है 90% चीजें हो गई हैं। तो अभी हमें फ्रेंडली कंट्री से थोड़ा सपोर्ट लेना चाहिए, ऑयल डेफर्ड पेमेंट पे लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें करके जरा कॉन्फिडेंस आता है और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को, इंपोर्टर्स को कॉन्फिडेंस देना है। अब ये बड़ा अहम सवाल है कि कॉन्फिडेंस आएगा कैसे। आप खाकान साहब आप ये कहिएगा, हम उसी अनसर्टेनिटी की बात को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी इस गवर्नमेंट ने ये जो पैसे बढ़ाए, पेट्रोल प्राइसेस भी बढ़ी, फिर उसके बाद कम भी की उन्होंने, लेकिन सब्सिडीज़ भी ख़त्म की ताकि IMF का मुआहदा हमसे हो सके। लेकिन अभी जो खबरें हैं कि IMF के मुआहदा होने में मज़ीद जो सब्सिडी है वो ख़त्म करनी पड़ेगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ है, फिर फ्यूल प्राइसेस पे भी कुछ देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कम करनी है, ज़्यादा करनी है।
तो अब ये पहले ही एक फैसला लेकर आपने रिजल्ट सियासी तौर पे ये देखा, तो क्या ये हुकूमत इतनी स्ट्रांग आपको लग रही है कि ये अब मजीद फैसले करके IMF तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि वहां उसका मुआहिदा होना तो बहुत ज़रूरी है? आपने बहुत अच्छी बात की, और देखें हमें एक सेकंड के लिए भी ये नहीं भूलना चाहिए कि एक्सट्रीमली चैलेंजिंग सिचुएशन है इस वक्त ग्लोबली। ऑयल और बाकी कमोडिटीज भी ऑन एलिवेटेड लेवल्स हैं। डोमेस्टिकली मैंने आपको एक खसारा बताया, दूसरा खसारा फिस्कल का जो है वो 5000 अरब को क्रॉस कर रहा है, यानी कि 25 अरब डॉलर का फिस्कल का मालियाती खसारा है जो हमने पिछला साल क्लोज किया है। हमें अपनी चीजों को बहुत 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 सीरियसली लेना चाहिए। 850 अरब का खसारा है एनर्जी सेक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का। This is really really serious where the country stands today. अब अगर आप इसको आगे लेके चलें तो हमें करना क्या है? हमें इस वक्त इंश्योर करना है कि जो फाइनेंसिंग गैप है, इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंसिंग गैप की, वो क्या चीज़ है? हमें अगले साल 35.1 अरब डॉलर दरकार हैं अपना पूरा फाइनेंसिंग नीड्स के लिए, जिसे हम ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स कहते हैं। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का टेबल होता है उसमें, उसको पूरा करने के लिए अभी भी 4.1 बिलियन डॉलर जो हैं हमें फ्रेंडली कंट्री से लेने हैं, जिसमें बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरेबिया, UAE और कतर, इसमें ऑयल फैसिलिटी, इसमें LNG फैसिलिटी, ये सब शामिल हैं। हमें इसको क्लोज करना है और इसकी सर्टेनिटी क्रिएट करनी है। बिजली की कीमतों के नर्ख में आई थिंक 3.5 रुपए का एक प्रायर एक्शन है, उसको हमें कंप्लीट कर देना चाहिए। जहां इतने बड़े फैसले लिए हैं गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट को ये फैसला भी लेना चाहिए। अगर ये दो चीजें हो जाएं और हमें ये दिखाई दे कि IMF की सर्टेनिटी एंड वीक जो आ रहा है हमारा अगस्त का, आई थिंक 26 की शायद बोर्ड डेट जो है वो कंफर्म हो रही है पाकिस्तान को। सो दैट इज अ गुड साइन कि हम 26 को हर सूरत में जा रहे हैं और ये पैसे इनफ्लो होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि करंट अकाउंट का लेवल अभी भी बहुत एलिवेटेड आ रहा है। जून का लेवल भी लग रहा है एलिवेटेड है और ये लेवल भी एलिवेटेड है। इसको संभालने के लिए हमें जो चीजें करनी है वो हमें जरूर मूव करनी चाहिए। ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि दावे तो बड़े हो रहे हैं, हम देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि जो दोस्त ममालिक हैं वो मदद भी करेंगे, लेकिन ये दावे वफा होते हैं, कितनी जल्दी होते हैं, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा अहम बात यह है कि मुश्किल फैसले ऑलरेडी ले लिए हैं, लेकिन अब मजीद फैसले लेने तो कैसे ये हुकूमत ले पाएगी? एक ब्रेक लेना है, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और फिर अपने तज्जियाकारों से यही सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। मुल्क की सियासी मैदान में क्या चल रहा है इससे मुतल्लिक तो हम आपको मुसलसल अपडेट किए हुए हैं और बड़ा क्लोजली लिंक्ड है मुल्क की माशी सूरत हाल से, जो हमारे तज्जियाकार ब्रेक से पहले हमें बता भी रहे थे। अब आगे क्या यहाँ से हो सकता है, किस तरह से जो मईशत की बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है इसको काबू किया जा सकता है? हुकूमत दावे तो कर रही है, लेकिन अमली तौर पर क्या करने की ज़रूरत है? खुर्रम शहजाद साहब, खाकान नजीब साहब और शाहिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम, आपकी तरफ आना चाहूँगी। जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और शाहिद साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि आज कुछ पेमेंट्स की हैं हमने, जिसकी वजह से जो एकदम से तकरीबन 8 रुपए कुछ पैसे, तकरीबन 9 रुपए की हमने जंप देखी है डॉलर में। आपको क्या लगता है ये आगे सिचुएशन किस तरह से अनफोल्ड करेगी? क्या यहाँ से अब ऊपर ही जाएगा डॉलर, या हम थोड़ी सी कमी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, ये सही बात है और शायद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पेमेंट्स हैं वो डेफिनेटली आज कुछ थी, एक आध दिन में ऐसा होता है कि कुछ बड़ी पेमेंट्स होती हैं। और आपको पता है हम जो एनर्जी है, अपनी एनर्जी की नीड्स जो है, तवानाई की जो ज़रूरियात है हमारी कंट्री की, वो हम उसका 25 से 30% हिस्सा जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। और अगर एब्सोल्यूट अमाउंट देखें तो हम इस वक्त 21 अरब डॉलर की टोटल फ्यूल, उसमें ऑयल है, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसमें गैस है, ये सब चीज़ें इंपोर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट है और वो किसी एक दिन ऐसा होता है, एक दो बैंक्स के पास बड़ी पेमेंट होती है। लेकिन इशू क्या है, देखें इस वक्त, पहले क्यों नहीं होता था? आज इसलिए इशू है कि आज डॉलर डेफिनेटली हमारे पास कम है, हमारे पास इंपोर्ट्स के जो कवर है, यानी कि हम कितने दिन की इंपोर्ट्स कर सकते हैं, वो मुश्किल से 60-70 दिन भी नहीं है इस वक्त। लेकिन हमें ये देखना है कि कितना जल्दी हम, जैसे और भी मेरे कोलीग्स ने कहा कि कितना जल्दी हम IMF को ऑनबोर्ड करते हैं, कितना जल्दी फिर फ्रेंडली कंट्रीज से ये चीजें करवाते हैं जो उनके साथ एक कमिटमेंट हुई कि IMF के ऑनबोर्ड आने के बाद सऊदी अरेबिया, कतर एंड UAE अपनी कैश डिपॉजिट देंगे, सपोर्ट देंगे। पहले वो $1 बिलियन जो है वो एक साल आगे कर चुके हैं, बट स्टिल डेफर्ड पेमेंट्स पे ऑयल हमें दें और गैस भी। इससे ये होगा कि हमारी जो लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है इस वक्त, डॉलर की रिक्वायरमेंट, जो हमें कर्जों की अदायगियां भी करनी है, वो फॉर द टाइम बीइंग हल हो जाएगी। लेकिन देखें
प्रॉब्लम हमारा ये होता है कि हम जो एडॉक बेसिस पे जो मसले होते हैं एडॉक बेसिस पे हल तो कर लेते हैं, बट फिर वही 3-4 महीने 6 महीने के बाद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, पॉलिसी मेकर्स जो है पता नहीं होता कौन होगा, क्या डिसीजंस लेंगे, टाइमली डिसीजंस नहीं होते हैं तो गलत होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। तो हम एक कंटिन्यूस जो है ना वो साइकिल में फंस गए हैं, जिससे हमें निकलना है। और निकलने का एक तरीका ये है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे स्टेक होल्डर्स एक जगह बैठे इकट्ठे हों, थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स को भूलें और इकोनॉमी को सामने रखें, कहें कि जी हम सबका भला इसमें है कि हम इस इकोनॉमी को हैंडल करें, हम पॉइंट स्कोरिंग छोड़ें, एक दूसरे पे लानतान छोड़ें, हम काम अपना शुरू करें। इस वक्त दुनिया के आगे हम एक हों ताकि हम IMF के साथ डील करें या हम किसी भी एक्सटर्नल अपने जो है वो क्रेडिटर के साथ, इन्वेस्टर के साथ डील करें, तो कॉन्फिडेंस जो हम मईशत से मुतालिक, इकोनॉमी से मुतालिक सारी जमातों को एक होना चाहिए। अच्छा शाहिद साहब, आप बताएं, आप क्या समझते हैं वॉर फुटिंग्स पे क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि मईशत में तो, इकोनॉमिक्स में तो फिर पॉलिसीज़ बनती हैं और उसके बाद उनके समरात आना शुरू होते हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन फौरी तौर पर हमें क्या इक़दाम लेने की ज़रूरत है हुकूमत को? लेकिन ये बड़ी अच्छी बात करी इन्होंने कि हम मिल के जो है ना सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल के इकोनॉमी को प्रायोरिटी दें और सब लोग मिल के इसके ऊपर जो है बैठ जाएं, और ताकि इससे एक इम्प्रेशन भी जाएगा, फ्रेंडली कंट्रीज को भी इम्प्रेशन जाएगा, जो कि $4 बिलियन की जो रिक्वायरमेंट है ना अदर देन दी मल्टीलेटरल और दूसरे लोन्स के बाद $4 बिलियन की हमारा डेफिसिट है, हमें उस गैप को पूरा करना है। तो वो भी एक इम्प्रेशन जाएगा कि यहाँ पे पाकिस्तान में सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इकोनॉमी को फोकस कर रही हैं, उसको प्रायोरिटी दे रही हैं। क्योंकि अब तो इलेक्शन हो गया, अब इलेक्शन तो अब दूसरे इलेक्शन भी कॉल या तो जल्दी हो जाएंगे या बाद में होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आई थिंक मेन फोकस होना चाहिए कॉन्फिडेंस देना इन्वेस्टर को। तो उसके लिए जरूरी है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे एक साथ बैठे, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स एक साथ बैठे और इकोनॉमी के ऊपर फोकस करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। और ये IMF की जो कैबिनेट से अप्रूवल करना है, जो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ वो जल्दी से करवाएं, ताकि ये सिग्नल जाएगा कि हमारे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ये इलेक्शन। शायद साहब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और खाकान साहब की तरफ लेके चलते हैं। ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि सारे टेबल पर मिलके बैठें, लेकिन खाकान साहब ज़रा टेक्निकली थोड़ा सा, बल्कि आप हमारे फोरम से हुकूमत को, तमाम स्टेक होल्डर्स को मशवरा, तजवीज़ भी दीजिएगा कि क्या हो सकता है फौरी कि वो ये स्टेप्स उठाएं और न सिर्फ मुल्क की मईशत के ऊपर कंट्रोल हो बल्कि जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसमें भी मदद मिले, बट वॉर फुटिंग्स के ऊपर खास तौर पे। जी ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आई थिंक व्हाट मैटर्स इज द इमीडिएट टुडे, और अभी भी सिचुएशन हमारी चैलेंजिंग है और चैलेंजिंग अगले 6 माह रहेगी। प्राइसेस ग्लोबली भी एलिवेटेड हैं और हमारी नीड्स कंसिस्टेंट हैं। बहुत अच्छा जिक्र हुआ कि हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की नीड्स एलिवेटेड हैं, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की नीड्स भी एलिवेटेड हैं। आपको मालूम है कि हमें वीट इंपोर्ट करना पड़ रही है, हमें कॉटन इंपोर्ट करना पड़ रही है, लेंटिल्स हम इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल की कीमत कुछ कम हुई है बट हम इंपोर्ट करते हैं। तो इन द शॉर्ट रन, एक तो गेट टू द IMF एज क्विकली एज पॉसिबल, गेट द $4 बिलियन एज क्विकली एज पॉसिबल, मेक श्योर कि जो आपकी एनर्जी नीड्स हैं वो, अगर आप इस वक्त LNG का एक जहाज 120 या $130 मिलियन का आ रहा है, जो कि हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में $35 मिलियन पे लेते रहे हैं, आई थिंक वी वुड हैव टू अवॉइड दैट। और उसका तरीका ये है कि मुल्क में हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंजर्वेशन और राशनिंग की जो रेजीम है उसको चलाना चाहिए अगले 6 महीने। सारी दुनिया ये कर रही है, हमें लोगों का बिहेवियर चेंज करना चाहिए। वी वांट टू मेक श्योर कि ये हो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। नंबर 2, हमें जो करना है एनर्जी कंजर्वेशन के अलावा वो ये है कि इंश्योर करना है कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसको जो गैस और बिजली है वो पूरी मिले, ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स रिसीट्स जो हैं वो ड्रॉप ना करें। ये जरूरी है, और स्पेशली इन अ ग्लोबल स्लो डाउन। तीसरी चीज जो है, हमें एग्रीकल्चर को वॉर फुटिंग पे डील करना है। मैं इस बात को नहीं मानता कि हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो 5 मेजर क्रॉप्स हैं, उनको अगले 1 साल के लिए मैनेज नहीं कर पाते। और ये उस स्टेज पे करना चाहिए हमें कि हमें अपने पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल और जो 36 और अदारे हमने बनाए हैं उनको ये कहना चाहिए कि वो जाएं और जाके फार्मर्स से इंटरैक्ट करें, उस बिहेवियर पे नहीं कि हम कोई एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम बनाना। आपकी तरफ से आई हैं डॉक्टर खाकान साहब, हमारे साथ ही रहिए। शाहिद हबीब साहब भी हमारे साथ हैं, खुर्रम शहजाद भी हमारे साथ हैं, और हुकूमत को ये बताने की कोशिश करें कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है वॉर फुटिंग्स पर। और एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी कॉम्प्रहेंसिव तजवीज़ भी दी हैं। इसके ऊपर ज़रा मज़ीद बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
पाकिस्तानी मईशत की हम बात कर रहे हैं और इस मईशत में क्या कुछ करने की ज़रूरत है, हमें डॉलर को किस तरीके से रोकने की ज़रूरत है, इस पर बात हो रही है। हमारे साथ मुआशी तज्ज़ियाकार डॉक्टर खाकान नजीब साहब हैं, खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ हैं और शाहिद हबीब साहब हमारे साथ हैं। खुर्रम साहब, आप ये कहिएगा, जैसे अभी एक खाकान साहब ने सजेशन दी और उन्होंने कहा कि हमें इंडस्ट्री को कुछ भी करके, वैसे तो बड़ा मुश्किल काम है, गैस और बिजली की सप्लाई पूरी हमें करनी चाहिए ताकि मईशत का पहिया तो चले, एम्प्लॉयमेंट भी जो जनरेट हो रही है वो होती रहे, फिर एक्सपोर्ट भी हमारी हो। और दूसरी चीज़ उन्होंने की कि एग्रीकल्चर पर हमें फोकस करना है। आप बताइए इन दो चीज़ों से मुताल्लिक। बिल्कुल, दो राय, इस पर कोई दो राय नहीं है कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा मिसिंग एरिया है, जो हम अपने आप को एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं, बट हमने किया कुछ नहीं है उसके लिए। और अभी उसका हिस्सा पहले जो है 33% था जीडीपी का। अगर आप 80s की बात करें, अर्ली 80s की बात करें, तो उस वक्त 3 बड़े हिस्से जो जीडीपी के होते हैं इकोनॉमी के, सर्विसेज सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है और मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये तीनों बराबर थे, यानी कि हर हिस्से का जो कंट्रीब्यूशन था, हर सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन 1/3 था जीडीपी के साथ। आज अगर आप देखें तो कंपटीशन को जिस तरह से हो चुकी है कि जो सर्विसेज सेक्टर है जिसमें रिटेल एंड ट्रेड आता है, वो तकरीबन जो है वो 65%, 60 से 65% के दरमियान ऑन एवरेज आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो 17-18% जो है, 60% अगर आप सर्विसेज ले लें तो बाकी जो है 18 से 19% जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अंडर 20%, और तकरीबन कोई 20 से 21% के बीच में आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो आप ये देखिए कि कितना हमने जो है वो डी इंडस्ट्रियलाइज किया है अपने आप को, रादर देन इंडस्ट्रियलाइज करना। और उसकी बैकबोन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बैकबोन जो होती है वो एग्रीकल्चर होता है, क्योंकि हर चीज का इनपुट जो है वो तकरीबन एग्रीकल्चर से आता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी चीज ये, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि देखिए अभी करना एक और चीज ये चाहिए। हम थोड़ी देर पहले एक्सपोर्टर्स की बात कर रहे थे। एक्सपोर्टर्स के जो नंबर ऑफ डेज हैं जो अपनी जो एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स हैं वो जो रोकने का या बाहर रखने के जो नंबर ऑफ डेज है वो 120 दिन है। इसको कम करके 60 दिन करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द एक्सपोर्टर अपने प्रोसीड्स वापस लाए और हमारे पास जो इतने डिले के साथ डॉलर्स आते हैं वो जल्दी आए ताकि हमारी लिक्विडिटी की इशू जो ये बड़ी अहम तजवीज़ है। ठीक है, शाहिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खाकान नजीब साहब और खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का।